Our God indeed is the beautiful one. Are you ready to sing once again to that wonderful name? Hallelujah. Lift the name of our King, the King of Kings, leaving aside everything that's weighing you down. Lift up your King, the one who deserves all the glory. Say, यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है, शहद से भी मधुर वो नाम। आपको क्षमा करता नाम, श्राप से मुक्ति देता नाम, चंगा होवे उस नाम से। यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है, शहद से भी मधुर वो नाम। पाप को क्षमा करता नाम, श्राप से मुक्ति देता नाम, चंगा होवे उस नाम से। सारे नामों से है ऊंचाई की उसका नाम, जग में सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सारे नामों से है ऊंचाई की उसका नाम, जग में सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सारे नामों से है ऊंचाई की उसका नाम, जग में सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सारे नामों से है ऊंचाई की उसका नाम, जग में सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। Are you ready to sing that one more time? Lift up the name of Jesus. Sing. यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है, शहद से भी मधुर वो नाम। पाप को क्षमा करता नाम, श्राप से मुक्ति देता नाम, चंगा होवे उस नाम से। We have the prophet in the house. और हमारे भवन में परमेश्वर के भविष्यवक्ता A है warm welcome to our dear pastor, evangelist, prophet Franklin Joshua. और पास्टर और भविष्यवक्ता फ्रैंकलिन जोशुआ का हम स्वागत करते हैं। Thank God for the ministry that God is doing through him, his wife, and the ministry. They are based out of Bangalore, and I've only seen him in Facebook, YouTube, and Instagram. And today, such an honor for us as a church to have you, Pastor Yoda. और वो अपने परिवार के साथ बैंगलोर में सेविकाई में जुटे हैं और जो कोई भी वो कार्य करते हैं उसमें परमेश्वर उन्हें बरकत दे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है पास्टर हमारे बीच। Thank you, brother Bharat, for arranging and inviting him to our church. Thank you so भाई much भरत for हम आपका connecting धन्यवाद us. करना चाहते हैं कि हमारे संपर्क में लाने And के we have लिए। other pastors also. I've met them all at different places, but today, good to have you all with us, especially Pastor Sandeep. We both were together at one camp, and today, after years, we are meeting back here. Thank you. God bless और you. सभी पासवानों के लिए भाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे संग बने रहे। पास्टर संदीप के लिए धन्यवाद करते हैं। कई साल पहले हम कैंप में मिले थे And today, since the prophet is in the house, और क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर के भवन में है, God is here, the Spirit of the Lord is here, and I'm sure there is something powerful coming for us. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे परमेश्वर से सुनने के लिए और परमेश्वर की सेवकाई में। Can we put our hands together as we all rise up? Come on, let's all rise up and Sabhi put our kuch hands aapko together bhi and call dear prophet to come ahead and share from the word, and Pastor Sandeep will translate or interpret it to Hindi. और पास्टर संदीप इंटरप्रेट करेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन का हम स्वागत करते हैं। Praise God.
प्रभु की स्तुति हो। It's such a great joy and a privilege for me to be in this wonderful church. इस सुंदर कलीसिया में आना मेरे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है। I've heard about the ministry of your dear pastor. आपके आदरणीय पास्टर की सेवकाई के बारे में It's मैंने such a सुना great था। joy to witness what God is doing with my और eyes. ये कितनी खुशी की बात है कि मैं सच में इस बात का गवाह हूँ आज ये देखने के लिए। When I was listening to the testimony of these wonderful youngsters, और जब मैंने इन सुंदर नौजवानों की गवाहियों को सुना, my mind went back to my old days, when I gave my life to Jesus in something like a youth camp, and such an overwhelming experience of listening to marvelous testimonies of these youngsters. Church, don't take this for granted. और तब इनकी गवाहियों को सुनने के बाद मेरा दिमाग जो है वो वापस मेरे जवानी के दिनों में चला गया और मैंने भी याद किया कि कैसे मैंने भी जवानी के उस दहलीज पर अपना जीवन प्रभु को दिया। I meet so many parents who are so concerned about their children's future. मैं बहुत सारे माता पिताओं से मिलता हूँ जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते They हैं। have money, they have wealth, positions, whatever the world can offer, everything they have, but they don't have control over their future of their children. और हम देखते हैं कि ज़्यादातर माता पिताओं के पास वो सब होता है जो दुनिया उन्हें दे सकती है, पैसा, शिक्षा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो जो है एक असुरक्षित भावना में होते हैं। But to see such a transformation as this youngsters. लेकिन आप देख सकते हैं जवानों में एक बड़ा बदलाव आया है। Church, don't take this for granted. Give a good clap to Jesus. इसे आप यूं ही हल्के से ना लें, उनके लिए Hallelujah. जोरदार तालियां बजाएं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Catherine Kuhlman once said, कैथरीन कुलमैन ने एक बार कहा the था, best thing that can happen to a person's life is और किसी भी व्यक्ति के साथ जो सबसे अच्छी बात कभी भी हो when सकती they है, surrender their life to God when they are young. जब वो अपना जीवन जवानी में परमेश्वर के आगे Because समर्पित करते God हैं, can use their future for His glory. क्योंकि परमेश्वर उनके भविष्य को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल What's करता the use when a man in an ICU dying say, Lord, I give my life to you? What's the use? है। और क्या It's good, he फायदा can be in है, heaven. क्या फायदा है जब आप बूढ़े होकर आईसीयू में बिस्तर पर लेटे होंगे और तब आप कहोगे प्रभु मैं अपना जीवन आपको देना Lord, चाहता give me हूँ, life, I will serve you at the age of प्रभु मुझे 98. और थोड़ी जिंदगी दीजिए, मैं आपको बुजुर्ग होते हुए भी आपकी सेवा God करूंगा। can grant him mercy, देखिए परमेश्वर दया कर सकता है, but for a youngster to give their life to God, लेकिन एक नौजवान के लिए अपना there जीवन is प्रभु no को देना, limit to what God can do through their lives. तो उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती जो परमेश्वर उनके साथ कर सकता है। And I appreciate pastor's son, what's his name? Jordan. isn't it? और Ethan, yeah. Okay. And the pastor's kids, it's a very challenging thing to be a pastor's kids. और पास्टर का जो बेटा यहाँ पर आया था नेथन जिसका नाम, और Because the world is so judgmental towards them. और हम देखते हैं कि पास्टर का बेटा होने के कारण दुनिया जो है कई बार उनका न्याय The करती world है doesn't allow them to be kids. और संसार उन्हें जो है बच्चे होने की They इजाजत ही नहीं expect them to देती be Mr. Perfect, Miss और Perfect. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सिद्ध बने या Such a बहुत ही great joy to see कोई God गलती touching ना your करे। son. और We बहुत rejoice ही with you. आनंद की बात है परमेश्वर आपके Once again, बच्चे give को a छू good रहा clap है। to Jesus. आइए फिर से एक for बार what he यीशु did के in लिए our youth जोरदार camp. तालियां बजाएं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Just close your eyes, lift up your आइए अपनी hands. आंखें बंद करें, अपने हाथों को I know उठाएं। we are running short of हम time, जानते हैं कि हम समय की कमी से चल रहे हैं, but God can do a quick work. लेकिन परमेश्वर बहुत ही जल्दी से काम करेगा। Time is never a constraint for God. और समय जो है वो कभी भी परमेश्वर को God रोक is नहीं not सकता। limited by time. परमेश्वर समय से बंधा हुआ In नहीं one है split second, और एक ही क्षण में He can change the destiny of His people. वो अपने लोगों के जो है गंतव्य को, One भाग्य को touch of बदल God, सकता one है। touch of God परमेश्वर का एक स्पर्श can change the destiny of your life. वो आपके जीवन के भाग्य को बदल सकता है। Every eye be closed. सारी आंखें बंद रहे। Do you have a keyboardist here? Thank you, Jesus. धन्यवाद Every eye be यीशु। closed. हर एक आंखें बंद Every रहे। eye be closed. हर एक आंखें बंद Every रहे। hands be lifted हर एक up. हाथ उठाया जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Just open your mouth and begin to अपने speak to मुंह the को Lord right खोलकर जो now. है परमेश्वर की स्तुति Speak to the करें Lord right और प्रभु now. से बातें करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद Oh, प्रभु। we worship your holy name, oh हम आपके God. पवित्र नाम की आराधना Thank करते you, हैं। Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Are there a worship team? Can I request the worship team? Hallelujah. Every eye be closed, every hands be lifted. हर एक आंख बंद रहे, हर एक हाथ ऊंचा उठाया जाए। Every eye be closed, every hands be lifted up.
हर एक आंख बंद रहे, हर एक Say, हाथ Father, उठाए speak to जाए। me today. और कहो पिता आज मुझसे Speak बातें to कर। me, O Lord. प्रभु मुझसे बातें Touch कर my life in a fresh new way. और एक नए तरोताजगी से मेरे जीवन को छू लीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I'm aware of the fact that people are watching this online as well. और मैं इस बात को जानता हूँ कि इस समय लोग ऑनलाइन हमें देख Welcome रहे all the viewers watching online. हैं। दर्शक हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। हम May the सभी Lord का minister स्वागत to करते you हैं। this morning. परमेश्वर आज की सुबह आपकी सेवकाई करे। Hallelujah. हालेलुया। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला सभी अपने हाथ उठा के ओ आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला आत्मा रे आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला आत्मा रे आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला जहाँ दो या तीन जहाँ दो या तीन कटे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा जहाँ दो या तीन जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया बोले तू आएगा बोले तू आए सामर्थ शक्ति से सामर्थ शक्ति दर्शन लाएगा दर्शन पाए Every hands be lifted up. आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला सभी अपने हाथ उठा के आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति एक उपस्थिति ला once again आत्मा रे आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की यीशु की शक्ति को ला Oh, we worship you, Jesus. आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला Father, we thank you for your glorious presence in our midst. पिता हमारे बीच आपकी महिमावंत उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद। Manifest your glory, O God, in our तेरी midst. महिमा को हमारे बीच प्रकट कर। Minister to your people, O अपने God. लोगों की सेवकाई कर। We wait upon your word. प्रभु हम आपके वचन की राह Your देखते word is a living word. हैं। आपका वचन जीवित है। As you are alive, जैसे तू जीवित है your word says in Hebrew, your word is alive, living and active. और तेरा वचन जैसे कि इब्रानियों की किताब में कहता है कि तेरा वचन जीवित और प्रबल है। Speak to us through your word. अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर Minister to us, O और God. हमारी सेवकाई कर। In Jesus' precious name. प्रभु यीशु के बहुमूल्य नाम से। Everybody say amen. और सभी लोग कहेंगे Everybody आमीन। say amen. सभी लोग कहेंगे आमीन। Please be seated in the house of आप God. कृपया करके अपनी जगहों में बैठ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Praise God. प्रभु की स्तुति। Once again, it's such a great joy and a privilege for me to minister in this beautiful church. और फिर से एक बार ये मेरा आदर और सौभाग्य है कि मैं इस सुंदर कलीसिया में सेवकाई करूं। I want to deliver to you a message which is like a prophetic word to you, which will be a blessing to you. मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसा संदेश आपको देना चाहता हूं जो भविष्यवाणी के रूप में आपके
लिए एक संदेश होगा। You know, there are certain messages we remember all the days of our life. देखिए हमारे जीवन में ऐसे कुछ संदेश होते हैं जिनको हम अपनी पूरी जिंदगी भर कभी भूलते नहीं। Even though born and brought up in a Christian family, और भले ही हम जो है एक मसीह परिवार में हमारा जन्म हुआ है, हमारा पालन पोषण हुआ है, yet at the age of 19 I gave my life to Jesus. लेकिन उसके बावजूद 19 साल का जब मैं था तब मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। So after I gave my life to Jesus, और मेरा जीवन यीशु को देने के there are बाद some messages which I heard when I was a youth. और एक जवान होने के नाते कुछ संदेश मैंने सुने थे, And those messages I remember even now. और वो संदेश मुझे आज भी याद है। Those are the core factor of foundational truths which has built up my faith. और ये वो मेरे जीवन के जो है मूलभूत बुनियाद बने, सत्य बने, जिसने मेरे जीवन And को खड़ा किया। With all humility, I want to say this. और पूरी विनम्रता से मैं ये कहना This morning, what I'm going to share with you, आज की सुबह जो मैं आपके साथ बांटने if वाला you हूं, understand this, अगर आप इस बात को समझेंगे and if you receive this grace, और अगर आप इस कृपा और अनुग्रह को I प्राप्त करेंगे, promise you, मैं आपसे वादा your करता life will never be the हूं, same. आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। God will take you to the next level in your life. परमेश्वर आपको आपके जीवन में अगले स्तर पर You ले will be जाएगा able to fulfill the destiny which God has planned and prepared for you. और आप अपने गंतव्य को जो है आप पार कर पाएंगे और जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई उसे आप पूरा The करेंगे। title which the Spirit of God has given me for tonight, this morning message is, और आज की सुबह जो संदेश मैं देने जा रहा हूं उसका शीर्षक जो प्रभु ने दिया, lift up your hand and say, अपने हाथ को उठा करके, 4 divine helpers we need in our life. और 4 अलौकिक सहायक जिनकी जरूरत हमारे जीवन Lift up में, your hand and say, 4 divine helpers और अपने हाथों को उठा करके है we need in our life. 4 अलौकिक हिंदी में सहायक, बोलिए। 4 अलौकिक सहायक जिनकी जरूरत हमारे जीवन में। रिपीट कीजिए, 4 अलौकिक सहायक जिनकी हमारे जीवन में सख्त जरूरत है. Now please listen very carefully. अब बहुत सावधानी से सुने। Every time you step into a season of favor of God, और हर एक बार जब भी आप परमेश्वर के अनुग्रह कृपा से भरे समय में प्रवेश you करें, will see that God will surround you with these 4 kinds of people in your life. आप अक्सर पाएंगे कि इन 4 प्रकार के लोगों से परमेश्वर आपको घेर लेता है। What do I mean by a season of favor of God? और मेरे बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह का समय। If you turn your Bible to Psalms 102 verses 13, और अगर आप मेरे साथ भजन संहिता 102 को निकालें, it talks about a season, a specific time for God to show favor on His people. और यहाँ पर परमेश्वर के लिए अपने लोगों पर भलाई और कृपा दिखाने का एक विशेष समय है। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says, और यहाँ पर वचन कहता है, the set appointed time, 102:13. और 102 उसका वचन 13 यहाँ Verses लिखा है। 13, 1-3. Yes. So you will arise and have compassion on Zion, for the set appointed time to show favor has come. तो उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। सभी हाथ उठा के बोलिए, अनुग्रह स्वीकारने का ठहरा हुआ समय. Hallelujah. हालेलुया। Please listen very carefully. बहुत सावधानी से सुने। There is a season where God will allow you to step into the season of favor in your life. एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर आपको कृपा और भलाई के समय में प्रवेश करने की इजाजत देगा। And I'm here to announce to you, और यहाँ मैं आया हूँ आप पर this घोषणा करने के लिए। church is stepping into the season of God's favor. और ये जो कलीसिया है वो परमेश्वर की भलाई में प्रवेश करेगी। This new coming year, even as you come to the end of this year, और जैसे हम इस साल की समाप्ति में as you're going to step into the new year, और जैसे हम नए वर्ष में कदम I रखेंगे, prophesy in the name of Jesus, मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से। the set appointed time for God to show you favor has come. और परमेश्वर का ठहराया हुआ समय जो है वो आपके लिए वो कृपा और अनुग्रह आएगा लेकर। Hallelujah. हालेलुया। Lift up your hand and declare this. और अपने हाथों को उठाकर The घोषणा set करें, appointed time और ठहराया हुआ समय for God to show me favor और मेरे लिए परमेश्वर की भलाई को दिखाने का has समय come. आ has चुका come. है। आ चुका है। Can you please stand up to your feet just for a क्या आप moment? अपने कदमों में खड़े होकर I want you to do this prophetic act right now. और मैं इसे भविष्यवाणी के रूप में करना चाहता हूँ। Just I want you to jump one step further. और मैं चाहता हूँ कि एक कदम आप जो है कूद कर आगे आए Jump कीजिए और कहिए, और कहें, the season of my, I step into the season of favor in Jesus' name. और मैं भलाई All के right, one ठहराए minute, समय में प्रवेश करता हूँ। one minute. At the count of 1, 2, 3. और 1 2 3 बोलने पर With faith, do it.
और हम इसे करेंगे। It's an act of faith. और ये विश्वास का कार्य It's an act of faith. ये विश्वास का कार्य है। We believe, therefore we speak. हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। We believe and therefore we act. हम विश्वास करते हैं इसलिए हम कार्य करते हैं। All right, ready? क्या आप तैयार At हो? the count of 1, 2 and 3, 1 2 3 बोलते ही you're going to step forward and say, I step into the season of God's favor in my life. आप अपने आगे कदम बढ़ाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर के ठहराए हुए कृपा के समय में मैं प्रवेश करूं। Hallelujah. हालेलुया। तैयार है? क्या आप तैयार जैसे हो? आप जंप करने वाले हो, अब बोलने वाले हो, प्रभु का अनुग्रह का समय में मैं पहुंच चुका हूं। Ready? 1, 2, 3. I step into the season of God's favor. और मैं परमेश्वर के ठहराए हुए अनुग्रह के समय में प्रवेश Lift up करता your हूं। hand and pray for 2 minutes right now. 2 मिनट के लिए प्रार्थना Pray करें। for अपने 2 हाथों minutes को right now. उठाकर प्रार्थना Pray करें। for 2 minutes right now. 2 मिनट के लिए Pray प्रार्थना for 2 करें। minutes right now. 2 मिनट के लिए Pray for प्रार्थना 2 करें। minutes right now. 2 मिनट के लिए In the प्रार्थना mighty करें। name of Jesus. और प्रभु यीशु के सामर्थ्य May में you step into the season of और favor. आप अनुग्रह के समय में कदम रखें। May the Lord surround you with और favor. प्रभु अपनी भलाई से आपको घेरे Favor रहे। on all sides. और सारी हर एक Favor जगह on से all sides. और अनुग्रह हर एक जगह से Favor on all sides. और अनुग्रह हर जगह से Favor. अनुग्रह In Jesus' mighty यीशु name. के सामर्थ्य In नाम में। Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Everybody say amen. और सभी लोग कहेंगे आमीन। Now please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते Yes, हैं। clap your hands and give glory to Jesus. और आइए हम यीशु के लिए जोरदार ताली। Hallelujah. हालेलुया। I'm here to announce to you, church. मैं यहाँ आया हूँ आपकी कलीसिया पर One of घोषणा the कर ministry of prophets is और भविष्यवक्ताओं की एक सेवकाई ये है, what God is going to do. जो परमेश्वर करने वाला है They will announce it first. वो आकर पहले आपको बताएंगे। Hallelujah. हालेलुया। What God is going to do in this church. और जो परमेश्वर इस कलीसिया में I've करने come to वाला tell है you, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। prepare yourself अपने आप को तैयार for करें unusual favor. एक असाधारण भलाई और अनुग्रह के लिए, Supernatural favor. अलौकिक अनुग्रह के लिए। You will think, how did this happen? आप सोचेंगे कि ये कैसे You हुआ। will say it happened by the favor. आप कहेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Now listen very carefully. लेकिन बहुत सावधानी से When सुनिए। you step into the season of favor, जब आप अनुग्रह के समय में कदम रखते हो you will be surrounded with these 4 divine helpers in तो your ये life. 4 अलौकिक सहायक आपको घेरेंगे। Oh, listen very आप carefully. बहुत सावधानी से सुने Listen, understand this, church. और सुने कलीसिया इसे समझे। In the early days of my ministry, मेरी सेवकाई के आरंभ के दिनों में I thought मुझे I लगा only needed the favor with God. मुझे सिर्फ परमेश्वर की भलाई चाहिए और बस। I ignored the fact that I also needed the favor with people. मैंने इस तथ्य को अनदेखा किया कि लोगों की भी भलाई अनुग्रह मुझे I used चाहिए। to go regularly in fasting for 40 days and 21 days. और मैं निरंतर 40 दिन 21 दिन के उपवास में जाता But था। I ignored the fact of building connections, relationship with people, with pastors, with men of God, with the people of God. लेकिन मैंने इस सच्चाई को अनदेखा कर दिया कि मुझे परमेश्वर के जन पास्टर्स और परमेश्वर के लोगों के साथ भी अपने रिश्ते को अच्छा करना है, उनसे अपने रिश्ते को बनाना है। I thought आप प्रभु का अनुग्रह तो काफी है. I don't need favor with मुझे people. लगा प्रभु का अनुग्रह है तो बस इतना ही काफी है, मुझे लोगों की क्या जरूरत है। But one day as I was reading the scriptures, लेकिन एक दिन जैसे मैं वचन को पढ़ the रहा था, Spirit of God corrected me. परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेरे अंदर सुधार And the लाया। Lord spoke to me through the scripture, Gospel of Luke chapter 2 verses 52. और प्रभु ने उस वचन के द्वारा मेरे अंदर सुधार लेकर आया और वो वचन था लूका 2:52। We all know this scripture. हम सभी को ये वचन पता And है। Jesus increased in wisdom and stature and favor with God and man. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो बुद्धि और डील डोल में और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में But बढ़ता the Lord गया। said, read again. और परमेश्वर का वचन कहा कि फिर से पढ़ना। I read Jesus increased in wisdom, stature and favor with God and man. और प्रभु यीशु मसीह बुद्धि डील डोल और मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह I में thought बढ़ता I गया। know this scripture from my Sunday school days. But और मुझे लगा कि ये वचन तो मेरे संडे स्कूल के दिनों से मुझे the मालूम है। Spirit of God said, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा God Almighty, सर्वशक्तिमान the परमेश्वर Word when He became flesh and dwelt among और us, वो वचन जो देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, God Almighty Himself, to function in the earthly realm, He needed the favor with people. और पृथ्वी के इस आयाम में परमेश्वर को भी काम करने के लिए मनुष्य की भलाई और अनुग्रह की जरूरत है। पवित्र आत्मा ने कहा बेटा परमेश्वर कोई मनुष्य का दया का जरूरत है तो तुमको कितना जरूरत है. हालेलुया। If God Himself अगर परमेश्वर खुद
to function in the earthly realm, और इस पृथ्वी के आयाम में काम करने in के लिए, order to fulfill his destiny, और अपने गंतव्य अपने भाग्य को पूरा he करने के needed लिए, the favor with people. अगर उसे मनुष्य के अनुग्रह की जरूरत The पड़ी, heavens belong to the Lord, but the earth he has given to the sons of men. और बाइबल कहती है स्वर्ग तो परमेश्वर का है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। Men are doorkeepers, gatekeepers on the planet earth. और इस पृथ्वी, ये जो ग्रह है पृथ्वी का, उसके रखवाले मनुष्य है। We need favor with God and also man. और हमें मनुष्य के साथ साथ परमेश्वर दोनों की जो है अनुग्रह की Lift जरूरत up your hand and say, oh God, अपने हाथों को उठाकर कहे let me परमेश्वर, find favor in your sight. और आपकी दृष्टि में मैं कृपा पाऊं, And let me find favor in the sight of people. और लोगों की भी दृष्टि में मुझे कृपा प्राप्त हो। Hallelujah. हालेलुया। Please listen very और carefully. बहुत सावधानी से सुने इसे। God Almighty says सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता in है, Isaiah 43 verses 4, और यशाया उसके 43 अध्याय वचन 4 में, an amazing scripture. और बहुत ही आश्चर्य में An डालने वाला amazing वचन, scripture. और बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला He वचन, says, और वो कहता है, in exchange of your life, और तेरे जीवन के बदले, in exchange of your life, और तेरे जीवन के बदले I will give you my people. मैं मेरे मनुष्य को तुझे दूंगा। Listen very carefully to और this. बहुत सावधानी से Listen सुने very इसे। carefully to this. बहुत सावधानी से सुने। For example, Pastor जी इधर आ जाइए. उदाहरण के लिए, Just for an example, इधर खड़े हो जाइए. और ये सिर्फ उदाहरण के लिए, Listen very carefully. और बहुत सावधानी से सुने। What God does is, what God is saying is, और परमेश्वर क्या कह रहा है, in the scripture Isaiah 43:4. Let's all और read it once यशाया again. उसके 43 अध्याय वचन 4 में, Let's all read it once again. और आइए हम फिर से एक बार सभी लोग पढ़ेंगे। Since you're precious and honorable in my sight, and because I love you, I will give men in exchange for you, and the people in exchange of your life. Now listen very carefully. और मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। Listen very carefully this. बहुत सावधानी से सुने। When you give your, this is an example, और he's Jesus. ये एक उदाहरण है। मान लीजिए हमारे पास्टर जो है वो यीशु है। Jesus. When I give my life to Jesus, जब मैं अपना जीवन यीशु को देता हूँ, in exchange of my life, और मेरे जीवन के बदले में, he says, वो कहते हैं, he will give his people. वो अपने लोगों को मुझे देगा। How many people understand this? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? He will grant you access to his people when you give your life to him. जब आप अपना जीवन उसे देते हैं तो उसके बदले में उसके जो लोग हैं उन तक संपर्क आपको मिलेगा। God has his people all over. परमेश्वर के पास पूरी दुनिया में उसके लोग हैं, He has his people in high places. और उसके लोग ऊंचे स्थान में हैं। What you need in your life, आपके जीवन में जो आपको चाहिए, God has his people in that places of और high उस जगह में places. परमेश्वर ने अपने लोगों को बैठाया He है। says, और when you give your life, अपना जीवन जब आप यीशु को देते in हो, Hebrews, और इब्रानियों में it says, when you surrender. लिखा है कि जब आप अपना समर्पण करते हैं, In English, it says, I will give you men in exchange of your life. और एक अनुवाद में लिखा है कि तुम्हारे जो है जीवन के बदले में मनुष्य को दूंगा। In Hebrews, it says, और इब्रानी भाषा में लिखा when है, you surrender, जब आप समर्पण करते I हो, will give you my people. वो अपने लोगों को आपको देगा। Lift up your hand and say, oh अपने हाथों God, को उठाए इस समय I surrender all. और कहो, प्रभु मैं अपना I समर्पण surrender करता हूं, all. मैं अपना समर्पण I करता surrender all. हूं, और मैं अपना सब कुछ समर्पण I surrender all to you, और God. प्रभु मैं सब कुछ अपना And the आपके आगे Lord रखता says, हूं। और प्रभु कहता है, as you surrender, और जैसे तुम अपना समर्पण I will करते हो, grant you access to my people. और मेरे जो लोग हैं उनसे तुम्हें मैं संपर्क कराऊंगा। Hallelujah. 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 Now listen very अब carefully to बहुत this. सावधानी से सुने। There are 4 divine helpers और you need in your चार life. अलौकिक सहायक है जिनकी जरूरत आपको आपके जीवन Now में। listen very अब carefully. बहुत सावधानी से सुने। If you read the scriptures, अगर आप वचनों को पढ़ें, and if you ask me who was a person who suffered the most in their life for a long period of time, अगर आप वचनों को पढ़ेंगे और सोचेंगे कि बाइबल में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो लंबे समय में अपनी समस्याओं में पड़ा हुआ था, the Bible says बाइबल कहती है there was a man who was crippled for 38 years. एक ऐसा मनुष्य था जो अपने बिस्तर पर 38 साल से पड़ा He हुआ था, suffered the longest time. और सबसे लंबे समय तक उसने पीड़ा उठाई। 38 years, the Bible says. और बाइबल कहती है 38 वर्षों से। You know what is the reason? आपको मालूम है इसके पीछे You know कारण what क्या is the reason? है? आपको मालूम है इसके पीछे The कारण क्या है? reason is, और कारण ये है, he says in Gospel of John chapter 5 verse 7. और यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय और
वचन 7 में उसका कारण मिलता है। He tells the reason why he is in that problem for 38 years. और वहां पर वो कारण बताया जाता है, वो खुद वो कारण कहता है कि क्यों 38 वर्षों से वो उसी हालत में पड़ा हुआ The है। reason is और इसके पीछे कारण है he did not have anyone to help him. उसके पास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। The lack of divine helpers kept him in the same problem for 38 years. और हम देखते हैं कि अलौकिक सहायक की कमी के कारण वो अपनी ही समस्या में 38 वर्षों तक पड़ा हुआ था। Oh church, I pray for you. और कलीसिया में आपके लिए प्रार्थना करता हूं, May you never say I don't have anyone to help me. आपको कभी ये कहना ना पड़े कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। May you always have somebody to help you in the और mighty name of हमेशा Jesus. आपकी मदद के लिए कोई ना कोई खड़ा रहे। Lift up your hand and pray right now. और अपने हाथों को उठाकर इस Pray समय for 2 प्रार्थना minutes right करें। now. और इस समय प्रार्थना Pray करें for 2 minutes right और 2 now. मिनट के लिए प्रार्थना I करें। pray in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु May यीशु you के नाम में always be surrounded with divine कि helpers. हमेशा अलौकिक सहायकों से आप May घिरे you रहें। never lack helpers in your और आपके life. जीवन में कभी सहायता करने वालों की May you कमी नहीं never हो। lack helpers in your और कभी life. आपको सहायता करने वालों की May कमी the ना हो। Lord surround you with और helpers. प्रभु सहायकों से आपको घेरे रहे In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Oh, listen very carefully, बहुत church. सावधानी से सुने कलीसिया। Imagine और कल्पना करें if he had somebody to help him, अगर उसके पास कोई होता उसकी मदद to करने, take him by the pool of the water when the angel came and stirred up the water. कि वो उसे बैतसैदा के कुंड तक लेकर जाए, जब स्वर्गदूत आता है उस पानी को हिलाता है, He would have come out of his तो problem. शायद बहुत ही पहले वो अपनी समस्या से बाहर आ The जाए। lack of divine helpers लेकिन अलौकिक सहायक Kept सहायता him- करने वालों की कमी के kept कारण him in the same problem. और उसी समस्या में वो पड़ा रहा। May you never lack helpers in your life. और आप कभी अपने जीवन में मददगारों की आपको कमी नहीं होगी। May you never lack helpers in your और life. कभी आपके जीवन में मददगारों Only की 4 कमी नहीं people are होगी। saying amen. सिर्फ 4 लोग May कर रहे you हैं never आमीन। lack helpers in your life. और कभी आपको मददगारों की कमी नहीं In होगी। Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम से हमें Now ऐलान let's go करते हैं। quickly. Let's go quickly. आइए हम जल्दी से जाएं। 4 divine helpers. 4 Divine अलौकिक helpers. सहायक, God sent divine helpers. परमेश्वर अलौकिक सहायकों को भेजता है। Firstly, सबसे पहले सबसे पहले, पहले lift up your hand and say, अपने हाथों को उठाकर कहें, divine connectors. अलौकिक जोड़ने वाले। Lift up your hand and say, divine अपने connectors. हाथों को उठाकर कहें, अलौकिक जोड़ने वाले। Hallelujah. हालेलुया। Now, who are these divine connectors? अब ये अलौकिक जोड़ने वाले कौन है? Divine connectors are those people who will connect you to the right proper source that will be a great blessing to you. और अलौकिक जोड़ने वाले वो लोग होते हैं जो आपको आपके उचित जरिए तक पहुंचाते हैं और जिससे आपको मदद मिलती है। One day, एक दिन Philip met Jesus. फिलिपुस ने यीशु से मुलाकात And after meeting Jesus, और यीशु से मिलने के बाद he comes to Nathanael and says, वो नतनिएल के पास आता है Hey और कहता है, Nathanael, हे नतनिएल, I think we have found the one who Moses spoke about. और मुझे लगता है कि हमें वो मिल गया जिसके बारे में मूसा ने बात की थी। And Philip was a divine connector for Nathanael, and he connected Nathanael to Jesus. और फिलिपुस जो है वो अलौकिक जो है रूप से जोड़ने वाला था जिसने नतनिएल को यीशु से जोड़ा। Hallelujah. हालेलुया। Another classic example. और एक अच्छा इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। The Bible says बाइबल कहती है there was a commander in chief in Israel called as Naaman. और इजराइल में एक सेना का एक फौज का सेनापति था His name was Naaman. और उसका नाम था नमान। Naaman had leprosy. और नमान को कोढ़ हो गया था He tried everything to be cured, but his problem was the same. और उसने अपना इलाज करने का हर संभव कोशिश किया लेकिन उसे कोई परिणाम नतीजे The नहीं Bible मिले। says in 2 Kings chapter 5, और बाइबल कहती है दूसरा राजा 5वें अध्याय in में verse 9, और वचन 9 में in verse 9 it says, और वचन 9 में कहा गया है there was a maid working in his house. और उसके घर में एक छोटी लड़की थी जो काम करती थी She came and told the wife of Naaman. और उसने आकर नामान की पत्नी से कहा, Can you please increase the monitor sound? Thank you, Jesus. थोड़ा सा बढ़ा दीजिए. Thank you, Lord. Hallelujah. She came and told the wife, और उसने आकर नामान की पत्नी से कहा, please tell the master to meet a man called as Elisha. आप कृपया करके हमारे स्वामी को एलीशा नाम के एक प्रभु के जन से मिलने से कहें, He will pray for him. वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। Now listen, और सुने,
This maid girl was an ordinary girl. ये छोटी जो नौकरानी, ये जो लड़की थी, ये एक साधारण लड़की She was an ordinary girl, और वो एक साधारण लड़की थी, but she connected Naaman to prophet Elisha. लेकिन उसने नामान सेनापति को जो है एलीशा भविष्यवक्ता से मिला। Oh, listen very carefully, बहुत church. सावधानी से सुने Listen, कलीसिया, understand this. और इसे सुनो और समझो। Who are divine connectors? और अलौकिक जोड़ने वाले कौन हैं? Divine connectors are those whom God uses to take you to your destiny. और अलौकिक जोड़ने वाले वो है जिनका इस्तेमाल परमेश्वर आपके भाग्य तक पहुंचाने के लिए God इस्तेमाल sends करता you a divine connector. है। और परमेश्वर ही है जो आपके अलौकिक सहायक को When भेजता है। God, जब परमेश्वर, when God sends a divine और connector, जब परमेश्वर अलौकिक जोड़ने वाले को भेजता है, God will pick you up from your problem and bring you to your solution. परमेश्वर आपको आपकी समस्या से उठाएगा और आपके हल, आपके जो है समस्या के हल तक पहुंचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Divine connectors आपके प्रॉब्लम से आपके हल तक लेके जाएंगे. Listen, और सुने, maybe you are suffering with some sickness. शायद आप कुछ बीमारी से लड़ रहे हैं Suddenly somebody will send a WhatsApp message saying, और अचानक why से- don't you consult this doctor? अचानक से कोई व्हाट्सएप पर आपको संदेश भेजता है कि आप जो है इस डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते, And you go and meet the doctor. और आप जाकर उस डॉक्टर से मिलेंगे, And the year-long problem is solved. और आप देखते जैसे आप उस डॉक्टर से मिलते हैं सालों की आपकी समस्या सुलझ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you're fighting a court case. और शायद आप अदालती मामलों से लड़ रहे हैं Somebody comes and tells you, और कोई आकर आपसे कहता है, I know this lawyer. हाँ मैं इस वकील को He's a जानता nice हूँ person. और वो बहुत ही अच्छे He व्यक्ति will हैं। surely help you. वो निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। And this divine connector connects you to the right source. और फिर ये अलौकिक जोड़ने वाला आपको सही जरिए से मिलाता है। When God sends you divine जब connectors, परमेश्वर अलौकिक जो है जोड़ने वाले को भेजता है, you will come out of your problem. तो आप अपनी समस्याओं से बाहर आओगे। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दैविक जोड़ने वाले आपका समस्या से आपके हल तक पहुंचाएंगे. When you have divine connectors, जब अलौकिक जोड़ने वाले आपके पास होते you will come out of your problem. तो आप अपनी समस्याओं से बाहर When आओगे। you have divine connectors, जब आपके पास अलौकिक they जो will है, connect you to जोड़ने वाले right होते हैं, sources, right people. तो आपको सही लोग सही जरिए तक पहुंचाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Even if you have come and you're part of this glorious church, और आप इस जो है महिमावंत कलीसिया का हिस्सा हो, God used a divine connector. परमेश्वर ने यहाँ लाने के लिए भी आपको अलौकिक जो है जोड़ने वाले का इस्तेमाल Somebody brought you to the church. किया। कोई तो है जिसने आपको इस कलीसिया में लाया। You know, our outreach coordinator, Brother Basuraj, is here. और हमारे And, आउटरीच कोऑर्डिनेटर पास्टर बसुराज यहाँ है। And Brother Pastor Bharat was the one who connected him to Jesus. और पास्टर भरत जो है वो हमारे वो व्यक्ति जिन्होंने हमको पास्टर से मिला। नहीं. Pastor Bharat थे जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इनको बचपन में बताया था. और पास्टर भरत ने सुसमाचार सुनाया पास्टर बसुराज को, He was a divine connector. और ये अलौकिक जो है जोड़ने वाले बने। Listen, सुने, divine connectors are not only those who will connect you with Jesus. और देखिए अलौकिक जोड़ने वाले केवल वही नहीं होते जो आपको यीशु से जोड़े। Like the maid in Naaman's house, और वो लड़की जो नमान के घर थी, divine connectors will connect you to your right source in your life. और अलौकिक जोड़ने वाले आपको आपके सही उचित जरिए तक पहुंचाएंगे। Lift up your hand and pray for 2 minutes right और now. अपने हाथों को उठाकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना Say, करें Father, send me divine connectors और in the कहो, mighty name पिता of मेरे Jesus. जीवन में अलौकिक जोड़ने वालों को May the भेज। Lord send you divine connectors in the mighty name of और Jesus. प्रभु ऐसा करे कि वो अलौकिक जोड़ने वालों को आपके जीवन When में God भेजे। sends divine connectors, और जब परमेश्वर अलौकिक जोड़ने वालों you को भेजता will है, be connected to the right source. तो आप जो है उचित जरिए से जुड़ In your जाओगे। business, आपके कारोबार में, in your job, आपके काम में, in the work of your hands. आपके हाथों के कामों May में, the Lord send you divine और connectors. परमेश्वर अलौकिक जोड़ने वाले को In भेजे। Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम In में, Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Everybody say, और सभी लोग कहेंगे, first divine helpers are divine connectors. और 4 अलौकिक सहायक में हम देखते हैं, सबसे पहला है अलौकिक जोड़ने वाला। You need divine connectors in your आपको life. अलौकिक जोड़ने वाले की जरूरत है। Secondly, और दूसरी बात, secondly, और दूसरा lift मुद्दा, up your hand and say, अपने हाथों को उठाकर कहें, people with authority in high places. और ऊंचे स्थान में अधिकार के लोग, अधिकार Lift जिनके up your hand and पास है, say, अपने हाथों को people with उठाकर कहें, authority in high places. और ऊंचे स्थान में जो अधिकार के लोग हैं, People with authority in high places. और ऊंचे स्थान में जो अधिकार के लोग हैं,
Church, please listen very carefully. कलीसिया सावधान, इसे सावधानी से सुने। If you want to do an effective impact ministry in India, और अगर आप भारत में एक असर डालने वाली सेवकाई करना चाहते हैं, church needs people of influence and authority in high और places. कलीसिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी पहुंच ऊपर सबसे ताकतवर लोगों तक When I हो। go to preach in crusades, जब मैं बड़ी सभाओं में like प्रचार places करने in जाता हूं, Chhattisgarh and Orissa, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसी जगहों में, और बहुत से बार हमारा विरोध वहां होता can है। you mute it in the live, please? Mute कर सकते हैं? Live में mute कर सकते हैं? Pharaoh, फिरौन, everybody say Pharaoh, और सभी लोग कहे फिरौन, sent for Joseph. और तब फिरौन ने यूसुफ को बुलाया। सभी बोलिए, फिरौन ने फिरौन ने यूसुफ को यूसुफ को बुलाया. बुलाया। Listen, सुने, Pharaoh calls for Joseph. और फिरौन जो है यूसुफ को बुलाता है, All the accusation which was put on him, और वो सारे झूठे आरोप जो यूसुफ पर लगाए all गए the punishment of prison और वो सारी सजा जो उसे सुनाई गई थी बंदी गृह में रहने की, ended in a split second. और एक चुटकी बजाते ही वो सारी सजा उसकी जो है रद्द हो गई। फिरौन ने यूसुफ को बुलाया, खत्म, सारा प्रॉब्लम सब भी सॉल्व हो गया एक ही क्षण में. How many feel able to understand this? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? When a person in a high place, जब कोई व्यक्ति जो ऊंचे स्तर पर ऊंचे one पद पर बैठा phone है, call will solve the problem of your उसका entire life. एक फोन कॉल सारी समस्याओं का हल कर देता है। One phone call from a person from a high place और एक फोन कॉल उस व्यक्ति से जो ऊंचे पद पर है, will take the highest praise church to the highest level. और वो हाईएस्ट प्रेस चर्च को और भी ऊंचे स्तर पर ले I जाएगा। sense this in my spirit, Pastor. और पास्टर मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा As your son was telling this testimony, हूं, और जैसे आपका बेटा गवाही दे रहा I sense this is just a preparation God is doing in your life. और फिर मैं महसूस कर रहा हूं कि ये सिर्फ तैयारी है जो God परमेश्वर has set you apart. आपको लेकर जा रहा है, God has set you apart to impact the city. और परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है शहर पर There प्रभाव are डालने many के लिए, thousands, there are many thousands here. और हजारों ऐसे होंगे। I sense this in my spirit. मैं अपनी आत्मा में जो है इस महसूस शहर कर में हजारों यूथ्स है जो ड्रग एडिक्शन में गलत मार्ग में चल रहे हैं. God has called you, man of God. और परमेश्वर के जन उसने आपको बुलाया है, Not only for this small group, और केवल इस छोटे से समूह के लिए नहीं, to rescue the perishing लेकिन जो नाश हो रहे उन्हें and बचाने to के care लिए, for the dying. और जो मर रहे हैं उनकी परवाह A करने के time लिए। will come. ऐसा समय You आएगा will have more than 1,000 youths in your youth camp. और आपके यूथ कैंप में 1000 से भी ज्यादा जवान होंगे।
More than 1,000 youths. और I 1000 से see भी this ज्यादा in my जवानों। spirit. मैं अपनी आत्मा में It महसूस shall करता be a national level event. हूं। और ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम National होगा level event. और राष्ट्रीय स्तर का Oh, कार्यक्रम listen very carefully, होगा। church. और बहुत सावधानी से सुनो In कलीसिया। order to fulfill the plan and the purpose of God in your और life, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना और मकसद को it's पूरा not करने के just लिए it's not just for you enough for you to just to know that Tom, Dick, and Harry around you. और टॉम डिक हैरी जो आपके जीवन के इर्द गिर्द है बस उन तक ही You आपको need connection with people in high places. जुड़े रहना काफी नहीं है। आपको जो है ऐसे लोगों से भी You आपका need संबंध होना access with चाहिए people in high places. जो ऊंचे स्थान और ऊंचे पद पर बैठे हैं। I know one pastor in Bangalore. मैं बैंगलोर में एक ऐसे पास्टर को जानता He हूं was the chief person who organized Benny Hinn crusade in और Bangalore. वही सबसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने बेनी हिन की बड़ी क्रूसेड को बैंगलोर में ऑर्गेनाइज You know, किया। when he organized his crusade, और जब उन्होंने क्रूसेड रखा वहां you पर can unmute कीजिए, audio को unmute कीजिए. When he organized his crusade, और जब उन्होंने क्रूसेड का there were आयोजन more than किया 16 cases against him उनके खिलाफ 16 मुकदमे हुए put by people who are opposition, और ये मुकदमे दायर किए गए by the विरोधी लोगों ने by the anti-Christian elements. और जो मसीह विरोधी जो लोग हैं ऐसे लोगों के द्वारा You know, he used to always pray. और वो हमेशा प्रार्थना करते He थे। shares his testimony. He used to और always pray. उन्होंने अपनी गवाही दी थी कि वो He used to say, हमेशा he used to say, "Oh God, और वो कहते थे प्रार्थना में हे let the परमेश्वर parliament ministers be my church members. और पार्लियामेंट के जो मंत्री है वो हमारे कलीसिया के सदस्य Let the बने। cabinet ministers, the councillors, the politicians, not only the poor, bring the rich, bring the people in high places, bring all kinds of people, oh God." और उन्होंने कहा कि जो राजनेता है जो संसद के मंत्री है कैबिनेट मंत्री है वो और उनके साथ ही साथ ना केवल धनवान गरीब और हर प्रकार के लोग हमारे चर्च में आए। 16 cases were against him. 16 मुकदमे उनके खिलाफ दायर You know what हुए। happened? आपको मालूम है क्या हुआ? One phone call from his church member. और उसकी कलीसिया के सदस्य का एक फोन कॉल All case solved. सारे मुकदमे खत्म हो गए। Hallelujah. हालेलुया। You need people in high places. और आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो ऊंचे You पद need पर people हैं। in high places. आपको ऐसे लोगों की जरूरत है Lift जो up your ऊंचे hand and पद pray पर for हैं। 2 minutes right और now. अपने हाथों को उठाकर 2 मिनट के लिए Highest प्रार्थना praise करें। church, pray for 2 minutes. और हाईएस्ट प्रेस कलीसिया प्रभु की इस प्रार्थना That God करें will प्रभु से। bless you, your church member. You will have cabinet ministers, parliament ministers becoming your church members. God raising up your youths to be in high places with authority in the mighty name of और Jesus. प्रार्थना करें कि आपकी कलीसिया में जो है पार्लियामेंट के जो है सदस्य और जो कैबिनेट मंत्री है बड़े ऊंचे अधिकारी हो और आपके जो जवान हैं उनको परमेश्वर अधिकार के स्थान में बिठाए People in यीशु high मसीह के places in the नाम में mighty name of और Jesus. प्रभु यीशु मसीह के इस महान नाम में In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। You know, Nehemiah was just a cook, an और आप ordinary देखो cook. नहम्याह राजा का पिलाने हारा था Just an ordinary cook. और एक साधारण एक कुक था। When he saw that the walls of Jerusalem had fallen, लेकिन जब उसने सुना कि यरूशलेम की शहर पनाह his गिर people गई are suffering because the walls और have वहां पर fallen. लोग जो है सताव में है दुख और तकलीफ में है His connection with the king. और नहम्याह का राजा के साथ जो रिश्ता था सभी बोले नहम्याह का नहम्याह का राजा के साथ जो रिश्ता था, राजा के साथ जो रिश्ता था उसका मकसद को पूरा करने में सहायता किया. उसका मकसद को पूरा करने में सहायता की। Hallelujah. हालेलुया। You need people with authority in high places. और आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो ऊंचे स्थान पर रहे May the Lord bless you with people in high place, with authority in high places. और परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से आशीष दे जो ऊंचे पद और ऊंचे स्थान पर है। May the Lord raise up youngsters, members of the church, and put them in the places of high places in the और mighty name of परमेश्वर Jesus. आपकी कलीसिया के नौजवानों को उठाकर ऊंचे पद पर जो है बैठाए। As Pastor was saying, और जैसे पास्टर कह रहे थे ministry means is not just becoming a pastor. और सेवा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पास्टर बनकर खुश रहना। Joseph and Daniel, they were not pastors. और यूसुफ और दानियल ये कोई पास्टर नहीं They were थे not prophets. और वो तो भविष्यवक्ता They थे were administrators, और वो तो प्रबंधक थे working in the government. और वो सरकार में काम करते These थे men made a difference. और यही बात है जिसने उनमें अंतर लाया। Lift up your hand and pray right और now. अपने हाथों को उठाकर I pray in the प्रार्थना name करें। of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु May यीशु the के नाम Lord से। raise you up. और प्रभु आपको उठाए Raise you up to high places. और आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाए Grant you access with people with connection in high places. और आपका संपर्क ऐसे लोगों से करे जो ऊंचे स्थान पर In हैं। Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम In में Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम Everybody में say amen. और सभी लोग कहेंगे आमीन। Hallelujah. Hallelujah. The third divine connectors which God is going to bless you और with. तीसरा जो अलौकिक सहायक जिससे परमेश्वर आपको आशीष देगा Lift up your hand and say gifted people. और अपने हाथों को उठाए और
कहे जो वरदान प्राप्त लोग हैं gifted, talented people. और वरदान और हुनर से भरे लोग। Listen, और सुने, when you step into the season of favor, जब आप अनुग्रह के समय में कदम रखेंगे, gifted, talented people will come and join you. वरदान और हुनर से भरे लोग आकर आपका साथ देंगे। Even if they are not gifted, और भले ही उनमें वरदान ना हो, because of your influence, you will train them to become gifted. और आपके प्रभाव के कारण आप उन्हें वरदान से भरा हुआ बनाएंगे। If you read the scriptures, अगर आप वचनों को पढ़ें, you will see that David never lost even a single battle. आप देखोगे कि दाऊद कभी एक लड़ाई भी उसने नहीं हारा। Even when he sinned against God, और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के even बाद that भी battle also he won. वो लड़ाई भी उसने जीत ली। You know why? आपको मालूम है क्यों? He had 30 gifted, talented warriors. उसके पास 30 हुनरमंद लड़ाई करने वाले योद्धा थे। First Chronicles chapter 11 verses 10 to 47. पहला इतिहास 11 अध्याय उसका 14 से 47। David had a powerful team. और दाऊद के पास जो है एक जबरदस्त सामर्थ्य से भरे हुए लोगों का दल था। Hallelujah. हालेलुया। Lift up your hand and say, teamwork. अपने हाथों को उठाकर कहे टीम वर्क। Teamwork और ये जो दल में काम will करते हैं make your dream work. और वो आपके सपनों को जो है काम करने में मदद करे। Teamwork और टीम में किया गया will काम make your dream work. और वो आपके सपनों को जो है पूरा करता है। Hallelujah. हालेलुया। What was the secret of David's victory? और दाऊद की विजय या जीत का रहस्य क्या था? 30 gifted warriors. और 30 हुनरमंद लड़ाई करने One वाले। fellow, when he took the sword, his sword stuck to his hand. That way he fought. और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने तलवार उठाया और तब तक वो लड़ता गया जब तक कि उस तलवार से उसको तकलीफ नहीं हुई। तलवार चिपक गया उसके और हाथ उसके में. हाथों में से जो है तलवार निकल नहीं रही थी। Such team David had. और इस तरह के लोग उसके दल में थे Gifted people. और हुनरमंद लोग। When you have gifted team, जब आपके पास हुनरमंद लोग होते हैं, talented team, वरदान से भरे हुए लोग होते हैं, there is no limits to what you can achieve. तो परमेश्वर के द्वारा आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं No है। limits to what you can achieve. आप जो हासिल कर सकते हैं उसमें कोई सीमा नहीं होगी। See the life of any person, the Apple or whatever companies, what was that rich guy? Yeah, Bill Gates and all those. Who's the richest man? Forget his name. Musk. All these fellows have a wonderful team. और आप देखो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति एलन मस्क और आप चाहे किसी भी कंपनी का नाम ले लो एप्पल और ये सारे जो लोग हैं जो कामयाब लोग जिनको लोग समझते हैं उनके पीछे हमेशा एक बड़ी टीम खड़ी होती है। Once Bill Gates said, और एक बार बिल गेट ने कहा, he appoints lazy fellows to an important job. और वो जो है आलसी लोगों को जो है सबसे महत्वपूर्ण काम पर रखते हैं। You know why? आपको मालूम है क्यों? They will discover user-friendly methods. और वो जो है यूजर फ्रेंडली जो एक मेथड होता है उसको वो खोज करते हैं। विंडोज जब आप ऑपरेट करते हैं आसानी से ऑपरेट करते हैं ना, क्यों? लेजी फेलोज को अपॉइंट किया और आलसी लोगों को उन्होंने रखा ताकि ज्यादा प्रोग्रामिंग गिर में सभी ने एक बटन में सभी हो जाना। Listen very carefully. बहुत सावधानी से सुने। If you have a solid team, अगर आपके पास एक मजबूत टीम होती you है are a blessed person. तो आप एक धन्य व्यक्ति हो। Lift up your hand and pray for 2 minutes. और अपने हाथों को उठाए और 2 मिनट के लिए Ask प्रार्थना God, ask and you shall receive. करें। और परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। Ask God to bless you with talented, gifted people. और परमेश्वर से मांगो वो आपको हुनर और वरदान से भरे हुए May you लोगों be की टीम दे। surrounded with talented and gifted people. और आप वरदान और हुनर से भरे हुए लोगों से घिरे रहे। May you be a victorious by the team which God gives you. और आपको परमेश्वर विजयी और कामयाब बनाए उस दल के द्वारा जो वो आपको May देगा। your team be like mighty men of David in the mighty name of और Jesus. आपके दल के लोग दाऊद की उन सामर्थी लोगों के समान हो यीशु In के Jesus' नाम mighty में। name. यीशु के सामर्थ्य In नाम Jesus' mighty में। name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Hallelujah. हालेलुया। And lastly, और अंत में oh, I love this. ओ मुझे ये बहुत पसंद This है। is important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। This is so important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Lastly, everybody lift up your और hand अंत and say, में सभी लोग अपने हाथ को उठाए। burden bearers. बोझ उठाने वाले, हाथ उठा के बोलिए burden bearers. बोझ ढोने वाले। Listen very carefully. और बहुत सावधानी से The सुने। first divine helpers. और पहला जो अलौकिक सहायक है वो कौन है? Can somebody tell me? क्या आप बता सकते हैं? Divine connectors. Secondly, और अलौकिक जोड़ने वाले दूसरा, people in high अधिकार के places of स्थान में जो लोग authority. हैं। Thirdly, और तीसरा gifted and talented वरदान और people. हुनर से भरे हुए लोग। Fourthly, और चौथा burden bearers.
Oh, बोझ ढोने वाले लोग। listen very carefully to this. बहुत सावधानी से सुने। Who are burden bearers? आप जो है बोझ ढोने वाले हो। Burden bearers are those who truly care for you. बोझ ढोने वाले वो व्यक्ति होते हैं जिनको सच में आपकी परवाह है। Burden bearers are those who will weep when you weep and who will rejoice when you rejoice. बोझ ढोने वाले वो होते हैं जब आप रोते हैं तो वो भी आपके साथ रोएंगे। Burden bearers are those बोझ ढोने वाले वो होते हैं who love you and care for you unconditionally. जो आपसे बिना शर्त प्रेम करेंगे, आपकी परवाह करेंगे। अगर आपके लाइफ में बर्डन बेरर्स, सच्चे बर्डन बेरर्स है, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन. अगर आपकी जिंदगी में सच्चे बोझ ढोने वाले लोग हैं तो आप सबसे धन्य लोग हो। Who are these burden bearers? ये लोग कौन है जो बोझ उठाते हैं? Classic example from the इसका scriptures. सबसे अच्छा उदाहरण वचन में हम Gospel देखते of Mark chapter 2. हैं। मरकुस रचित सुसमाचार Reading उसका from verse दूसरा 1 to 5. और 1 से 5 में हम पढ़ते The हैं। Bible says बाइबल कहती है Jesus was preaching in a और house. यीशु मसीह एक घर में प्रचार कर Probably रहे it थे was Simon Peter's house. और शायद ये शिमोन पतरस का घर The था। Bible says और बाइबल कहती the है crowd was so big. और इतनी बड़ी भीड़ उस जगह थी There was the paralytic man. और एक लकवे का मारा He हुआ was not व्यक्ति था able to approach और Jesus. वो यीशु से मिल नहीं पा रहा था, But लेकिन he had 4 friends. उसके 4 दोस्त थे। 4 friends who were burden bearers. वो 4 दोस्त जो उसका बोझ उठाने वाले थे, They determined. उन्होंने तय कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा दोस्त यही परिस्थिति में नहीं रहना है. You know who are burden bearers? आपको मालूम है जो बोझ उठाने वाले वो कौन है? Burden bearers will not let you in the same place where you're struggling. बोझ उठाने वाले कभी आपको उस जगह में रहने नहीं देंगे जहां पर आप संघर्ष कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Burden bearers will make a difference in your life. बोझ उठाने वाले आपके जीवन में एक फर्क, एक अंतर को लेकर Burden आएंगे। bearers will take your problem as their own problem. और बोझ उठाने वाले आपकी समस्याओं को अपनी खुद की समस्या समझ कर ले लेंगे। You know who are burden bearers? आपको मालूम है कौन है बोझ These उठाने 4 वाले? fellows ये 4 लोग took this paralytic man on top of the roof. और उन्होंने इस लकवे के मारे व्यक्ति को जो है छत पर वो लेकर गए। Listen, सुनाई। burden bearers will take risk to help you. और बोझ उठाने वाले आपके लिए खतरा, कोई भी खतरा उठा लेंगे। आपको मदद करने के लिए कोई भी खतरा का सामना करेंगे. Imagine they are carrying this paralytic man on top of a stranger's house. और कल्पना करें कि वो लकवे के मारे इस व्यक्ति को एक अजनबी के घर के छत पर ले जा रहे थे। Who are burden bearers? और वो बोझ उठाने वाले कौन है? They will go to any extent to help you. और आपकी मदद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे उनके हाथ में पैसा नहीं है, परंतु आपको मदद कर लेंगे. They will go to any extent. और आपकी मदद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। These 4 fellows ये 4 लोग broke the roof of a stranger. उन्होंने एक अजनबी के घर की छत को तोड़ दिया कुछ भी नहीं सोचा. और सोचा नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार है, हमारा दोस्त उसका प्रॉब्लम से बाहर आना है. These are burden bearers. ये बोझ उठाने वाले लोग हैं। I am telling you, मैं आपसे कहना if चाहता you हूँ, have 2 or 3 people who are truly burden bearers in your life, अगर आपके जीवन में 2 या 3 भी लोग हो जो आपका बोझ उठाए, you are a blessed person. I'm तो आप telling you. सबसे धन्य व्यक्ति हो। You truly are a blessed person. आप सच में आप आशीर्वादित व्यक्ति हो। 2 or 3 people who really want you to come up in life. 2 या 3 लोग जो सच में चाहते कि आप जिंदगी में ऊंचा उठे। The sad fact is, दुख की बात यह है, we are living in a selfish world. हम एक स्वार्थी दुनिया में जी रहे हैं। People will connect with you, और seeing what you can offer to them. लोग आपसे तभी जुड़ते हैं जब वो देखते हैं कि आपसे उनको क्या मिल सकता How है। can I be benefited if I'm close और to this man? कैसे अगर मैं इनके नजदीक जाऊं तो इनसे मेरा फायदा क्या होगा? If I'm close to Pastor Sandeep, अगर ये मुझसे ज्यादा नजदीक है what will I benefit? तो मेरा फायदा क्या होगा? That is the kind of world we are living in. इस तरह की दुनिया में हम जी रहे, But मतलबी in the दुनिया midst में। of such a world, और हम देखते हैं इस दुनिया में, इस संसार में, और इस संसार में, इस जैसा संसार और में, ऐसे संसार में if God has blessed you with burden अगर bearers, परमेश्वर ने आपको बोझ उठाने वालों से आशीष दिया है, you are blessed. आप आशीर्वादित You हो। are blessed. आप आशीर्वादित हो। If you have friends who truly, genuinely care for you, अगर आपके दोस्तों को सच में आपकी you परवाह है are blessed. तो आप धन्य हो। Listen very और carefully. बहुत सावधानी से सुने। But there is a criteria. लेकिन उसकी एक शर्त है। Jesus said, यीशु ने कहा, blessed are those who are merciful. धन्य है जो दयावंत है। In reciprocate, और इसे उसके दोहराते बदले हुए, में, और उसके बदले में God says, परमेश्वर कहता है,
they will obtain mercy. क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कितने लोगों को प्रभु चाहिए परमेश्वर आपको बर्डन बेरर्स दे? कितने लोग चाहते हैं बोझ उठाने वाले आपके प्रभु साथ आपके बोझ उठाने वाले लोग कितने लोग चाहते हैं? Listen, सुने, if you want God to bless you with burden bearers, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर बोझ उठाने वालों से आपको आशीष दे, you become a burden bearer to someone. आप खुद किसी का बोझ उठाओ। Unless and until you break out of being selfish, और जब तक कि आप मतलब या स्वार्थी होने के स्वभाव से बाहर नहीं आते, me and my family are happy. मेरा परिवार खुश है, They might have done some mistake. That is why he's going. Let God judge him. Let God और teach him. शायद उन्होंने कुछ गलत किया है इसलिए तकलीफ उठा रहे, परमेश्वर उनका न्याय करे। When you weep with those who weep, जब आप उनके साथ रोते हैं जो रोते हैं, you know something? Let me tell you a fact. मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। People will not remember you when you are a part of their celebration. लोग आपको तब याद नहीं रखेंगे जब आप उनकी खुशी का हिस्सा बनते हो, People will always remember you when you are with them in their problems. लेकिन लोग आपको हमेशा याद रखेंगे जब आप उनके तकलीफ में उनके साथ खड़े होते हैं। You know, you see your wedding photos. आपने कभी अपनी शादी की जो एल्बम होता है उसको देखा है? Yeah, wedding photos, birthday parties और photos. बर्थडे पार्टी की जो एल्बम होती है, तस्वीरें होती हैं, अभी शादी हुआ रहेगा. और अभी भी शादी हुई, हाँ, hey, ये भी आए थे क्या? Oh, this person had come for the wedding. अरे ये व्यक्ति आए थे शादी में, Why? क्यों? Our human tendency is you will forget those who are in the part of your celebration. हम देखते हैं कि हमारी मानवीय जो स्वभाव है वो कुछ ऐसा है कि हम उन लोगों को अक्सर याद नहीं रखते जो हमारी खुशी में जो है शिरकत करते हैं। But लेकिन 10 या 15 साल पहले जब आप बुखार में थे, कोई आपको एप्पल लेके आए, कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। When I was not keeping well, you came to see me ना? जब मैं बीमार था तब तुम मुझे देखने आए थे ना। Be a burden bearer. किसी का बोझ उठाने वाला बनो। Decide today, church. आज कलीसिया निर्णय लो। Decide today, church. कलीसिया आज निर्णय लो। May this church never lack burden bearers. और कलीसिया, इस कलीसिया में कभी भी बोझ उठाने वालों की May कमी you नहीं हो। never suffer alone. और आप कभी अकेले दुख नहीं उठाए। May God surround you with burden और bearers. परमेश्वर बोझ उठाने वालों से आपको घेरे रहे। You know the early church? क्या आपको मालूम है आरंभ की कलीसिया? Everyone was prosperous. हर कोई जो है संपन्न था। Why? क्यों? They shared with each other. क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को साझा किया सिर्फ था। खाना नहीं, सिर्फ खाना ही नहीं बाइबल पढ़ के बांटा। देखिए बुक ऑफ एक्ट्स में, आप देखो प्रेरितों के काम they में used to share their properties as well. उन्होंने अपनी संपत्ति भी बेचकर एक दूसरों की मदद की। अरे तुम भाड़े के घर में जी रहे हो, मेरे पास 4 घर है, एक ले लो. That was a pattern of the early church. और ये आरंभ की कलीसिया का जो है तरीका था। They learned to carry the burden of one another. उन्होंने एक दूसरे के बोझ को उठाना सीखा। If you want revival, अगर आप बेदारी चाहते हो become a burden तो bearer. आप बोझ उठाने वाले बने। God will surround you with the burden bearers. परमेश्वर बोझ उठाने वालों को आपके चारों ओर भेजेगा। Listen, सुनो, break free from selfish motive and self-centeredness. मतलबी या स्वार्थी स्वभाव या खुद पर ही ध्यान देने के स्वभाव से बाहर सिर्फ आओ। मैं come out of it. और मैं इस तरह के स्वभाव से बाहर आओ। जब प्रॉब्लम है, प्रभु कोई भी नहीं है हेल्प करने को, nobody is there to why? समस्या ये है कि मेरी मदद करने के लिए कोई Did नहीं है। you क्यों? go and help someone in need? अगर आप किसी की जरूरत में किसी की मदद के लिए पहुंचेंगे Heaven will record if तो you stand for स्वर्ग someone. जो है वो आपका हिसाब रखेगा And heaven will send you divine और helpers. स्वर्ग आपकी मदद के लिए अलौकिक सहायता With the को same भेजेगा। measure you measure it to others, जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो it shall be measured back to और you. उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। बगल वाले व्यक्ति को बोलिए, be a burden bearer. और बोझ उठाने वाले बनो। God will surround you with burden bearers. परमेश्वर बोझ उठाने वालों से आपको घेरे Let's all रहेगा। stand up to our feet. आइए हम सब खड़े हो Let's जाएं। all stand up to our feet. आइए हम सब खड़े हो Just जाएं close your eyes, lift up your hand. और अपने आंखें बंद करें। I अपने declare हाथ these उठाएं। blessings in the और mighty मैं name of आशीष की Jesus. घोषणा यीशु के नाम से I करता हूं। declare these blessings over this church in the mighty name of और इस Jesus. कलीसिया पर मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से इस आशीर्वाद As की you're घोषणा stepping करता into the season of हूं। favor, और जैसे आप भलाई और अनुग्रह के इस मौसम में कदम as you're रखेंगे stepping into the season of और favor, आप अनुग्रह के
समय में कदम रखेंगे। May the Lord bless you with divine और प्रभु connectors. आपको अलौकिक जोड़ने वालों से जो है आपको मिलाए। Say, I receive और it. कहो मैं इसे प्राप्त करता हूँ। May the Lord bless you with people with connection in high places and और ऊंचे authority. स्थान में ऊंचे पद वालों से परमेश्वर आपको मिलाए। May the Lord bless you with gifted, talented people. और परमेश्वर हुनर से और वरदान से भरे हुए लोगों से आपको And मिलाए। may the Lord bless you with burden और bearers. परमेश्वर बोझ उठाने वालों से आपको आशीष दे। Burden bearers. बोझ उठाने वालों Lift से up your hand and say, I receive अपने it. हाथों को उठाकर कह I मैं इसे receive प्राप्त it. करता हूँ, मैं इसे प्राप्त करता Father, हूँ। bless this church, O और Lord. पिता इस कलीसिया को आशीष You दे। have called this church to impact the city and the nations. और तूने इस कलीसिया को बुलाया राष्ट्र और शहर पर प्रभाव डालने के Thank लिए। you for your precious anointed son, O Lord, and his wife. धन्यवाद प्रभु आपके बहुमूल्य अभिषेक दास के लिए और Thank उनकी you, पत्नी Lord, के for लिए। the shepherd of his house, O Lord, and his family. और धन्यवाद कि वो इस कलीसिया और अपने परिवार के चरवाहे We हैं। pray that you'll bless them even more. हम प्रार्थना करते कि आप उन्हें और अधिक आशीष I दीजिए। pray this coming new year, और आने वाले नए साल में मैं may प्रार्थना they करता step into new realms of glory. हूं और वो महिमा के नए आयाम में कदम रखे। May their glory be never be the same as the previous year. और वो महिमा पिछले साल जैसी नहीं होगी। Let them step into the new realms of glory. और वो महिमा के नए आयाम में प्रवेश करें। New levels of ministry. सेवकाई के नए स्तर में Greater measure. और अधिक और बड़े Greater नाम से measure. और अधिक और बड़े नाम से।